हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 7 है। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन 91 और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जहाँ पे द कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन कि कोई पर्सन जो है ही इज़ इन पोजेशन ऑफ अ थिंग और अ डॉक्यूमेंट एंड दैट थिंग और डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर व्हाट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल पर्पसेस, देन द कोर्ट कैन ऑर्डर कि वो जो पर्सन है वो पर्टिकुलर थिंग या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करे बिफोर द कोर्ट। सेक्शन 91 का हेड है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। Whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial, or other proceedings under this court by or before such court or officer, such court may issue a summons। तो कोर्ट क्या करेगी, वो इशू करेगी समन्स और सच ऑफिसर अ रिटन ऑर्डर, या पुलिस ऑफिसर अगर कोई होंगे वो एक रिटन ऑर्डर इशू करेंगे उस पर्सन को जो इन पोजेशन है या अंडर जिसके पावर के में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या चीज़ है, और जो कोर्ट है या वो रिटन ऑर्डर है वो उस पर्सन को बोलेगी कि आइदर टू अटेंड द कोर्ट और टू प्रोड्यूस इट और टू प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन्स और द ऑर्डर। उसको बोलेगी उस ऑर्डर में या उस समन्स में कि इस डेट और इस प्लेस पे आप जो है लेके आइए वो जो डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग है आप वो लेके आ जाइए। Any person required under this section merely to produce a document or thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes the document or a thing to be produced instead of attending it personally to produce the same। Because ये summons जाती हैं for the production of a particular thing, if the person only presents the document or the thing, उसका personal attendance ज़रूरी नहीं है, ये बोला गया है subsection 2 में। Nothing in this section shall be deemed to affect section 123, 124 of the Indian Evidence Act or the Banker's Book Evidence, or to apply to a letter, postcard, telegram or other document or parcel thing that is in custody of the postal or the telegraph authority। तो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा वो दिया गया है हमारे subsection 3 में। Then under section 92 we have procedure as to letters and telegrams। If any document, parcel or a thing is in custody of a postal or telegraph authority, कोई भी document, parcel या कोई भी ऐसी चीज़ जो custody है किसके, telegraph authority के, is in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate या court of sessions या high court। तो इसमें क्या क्या authorities है, सबसे पहले तो district magistrate, then we have chief judicial magistrate, then we have court of sessions or the high court wanted for the purpose of any investigation, inquiry or trial या any other proceeding under this court। Such magistrate or court may require the postal or the telegraph authority as the case may be to deliver such document, parcel or thing to such person as the magistrate or the court directs। बेसिकली ये बोला गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह या टेलीग्राम है या कोई लेटर है वो पोस्टल सर्विसेज या टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ के अंडर है, तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, जो कोर्ट ऑफ सेशंस हैं या जो हाई कोर्ट हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ दैट सच पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पार्सल। If any such document, parcel or thing is in the opinion of any sort, in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of the police or district superintendent of police, wanted for any such person, he may require the postal or the telegraph authorities, as the case may be, to cause search to be made for and detain such document, parcel or thing pending the order of the district magistrate, chief judicial magistrate or the court under subsection 1। Then the part B of this particular chapter deals with search warrants। Basically search warrants कब issue होंगे, वो किस situation में issue होंगे, कौन issue कर सकता है, reason to believe क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस chapter में। तो सेक्शन 93 डील्स विद सर्च वारंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी कभी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्च वारंट किस सेक्शन में दिया गया है। सो जो भी पढ़ रहे हैं प्लीज़ इसको
टिक कर दीजिए अपनी बेयर एक्ट में, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। जो द सर्च वारंट इशू करने का जो पावर है, इट्स ए जुडिशियल फंक्शन। तो जो जज है उनकी अथॉरिटी में ये है कि वो डेफिनेटली एक सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। Where any court has reason to believe that a person to whom summons order under section 91 or a requisition under subsection 1 of section 92 has been or might be addressed will not or would not produce the document or a thing as required by such summons or requisition, or where such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person, or where the court considers that the purposes of an inquiry, trial, or other proceeding under this code will be served by general search or inspection, it may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therein the provisions hereinafter contained. बेसिकली जहाँ पे किसी को समन्स गई है अंडर 91 या 92 का सबसेक्शन 2, बट द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि ये पर्सन जो है मे बी ही विल नॉट प्रेजेंट द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और थिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, तो एक तो उस सिचुएशन में वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। एक तो वो सिचुएशन, या कोर्ट को नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट इस पर्सन की पोजेशन में है बट दे आर लुकिंग फॉर दैट डॉक्यूमेंट, वो दूसरा रीज़न हो गया। एंड तीसरा, जो कोर्ट है वो कंसिडर करता है कि किसी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के लिए will be served by general search or inspection, it may issue a search warrant कि किसी for a better inquiry, trial या other proceeding the purposes will be served better अगर search warrant issue किया जाए so that that thing or a document is found या उस चीज़ को ढूंढा जाए, तो उस सिचुएशन में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। आई विल रिपीट अगेन, 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे सर्च वारंट्स के बारे में बोला गया कि कब कब इशू होंगी। सबसे पहला, जहाँ पे कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है कि जिसको समन्स वगैरह इशू हुई हैं वो पर्सन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा एंड ही विल नॉट प्रेजेंट द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और अ थिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। नंबर 2, कोर्ट को नहीं पता कि जो पर्टिकुलर चीज़ है दैट इज़ इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ये नंबर 2 है। एंड नंबर 3 जो है वो बोलता है कि फॉर द बेटर इट सर्व्स द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेटर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल या एनी अदर प्रोसीडिंग सर्व करता है बेटर कि अगर सर्च वारंट एक पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर जगह के लिए इशू किया जाए ताकि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिल जाए। The court may, if it thinks fit, specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of the warrant shall then search or inspect only the place or part so specified. अब सर्च वारंट्स में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप रीज़न लिखो कि हमें क्यों लगता है कि आपकी जगह के लिए या आपकी जो ये जगह है हमने इसके लिए सर्च वारंट क्यों इशू किया, ये मैंडेटरी नहीं है। एक सर्च वारंट मैंडेटरी है ऑफ कोर्स, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू स्टेट द रीजंस फॉर द इशुएंस ऑफ द वारंट। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट है ही इज़ बाउंड टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इशुएंस ऑफ वारंट, क्योंकि कल को अगर कोई हायर अथॉरिटीज़ या हायर कोर्ट्स इफ दे परयूज द डॉक्यूमेंट्स या कोई फॉर एग्जांपल कोई भी हायर अथॉरिटीज़ है दे वांट टू गो थ्रू द लीगैलिटी ऑफ द सर्च दैट हैज़ बीन कंडक्टेड, तो उनके पास एक रीज़न होना चाहिए कि व्हाई द सर्च वारंट वाज कंडक्टेड। सिमिलरली जो सबसेक्शन 2 है उसमें ये बोला गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो डिफाइन करे लिमिट्स कि अगर ये घर है इसमें आप सिर्फ 3 ही कमरे का सर्च कर सकते हो, चौथे कमरे का नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लिखा जाए। लेकिन जहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि द सर्च वारंट इज टू एक्सटेंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, देन इन सच अ सिचुएशन द सर्च वारंट विल ओनली, शैल का यूज किया गया, शैल ओनली be extended to that place. Nothing contained in this section shall authorize any magistrate other than the district magistrate or chief judicial magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the postal or telegraph authority. Basically ये बोला गया है कि जो कोई भी मैजिस्ट्रेट है other than the district magistrate or the chief judicial magistrate,
बेसिकली अथॉरिटी की बात की गई है। ये बोला गया है कि अदर दैन द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नथिंग इन दिस सेक्शन, कोई भी अदर मैजिस्ट्रेट को ये अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। कौन सी अथॉरिटी? टू ग्रांट अ वारंट ऑफ to search for a document, parcel or thing in the custody of the postal or telegraph authorities. Then section 94. बाय द वे सेक्शन 93 में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है अंडर द नेम ऑफ वी.एस. कुट्टन पिल्लाई वर्सेस रामाकृष्णन। इस केस लॉ में द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 97 was under question, but it was held not to be violative of Article 20 or Article 19. So this is a case law that you might want to write while you're making the notes. Then section 94, search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc. If a district magistrate, sub-divisional magistrate, or the magistrate of the first class, upon information and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe, एक magistrate, sub-divisional magistrate या JMFC, ये तीन authorities यहाँ पे दी गई हैं 1, 2 and 3. Upon information and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of कौन सी stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable. पहली दो चीज़ें, इनफैक्ट तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, अथॉरिटीज़ कौन कौन सी दी गई हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. पहले तो ये. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये जगह है जहाँ पे रीज़न टू बिलीव है, क्या है रीज़न टू बिलीव? कि आइदर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है. ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कोई ऑब्सीन मटेरियल है या काउंटरफीटेड करेंसी वगैरह है. तो सस्पेक्टेड है कि ये जगह जो है जहाँ पे हमें सर्च वारंट इशू करने की ज़रूरत है, तो वो जगह उस इन ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स या स्टोलन प्रॉपर्टी को दे आर आइदर स्टोरिंग इट. तो जो ये अथॉरिटीज़ हैं ये वारंट इशू करेंगे और ऑथराइज करेंगी पुलिस ऑफिसर को, जो दूसरी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अबाउट द रैंक ऑफ कांस्टेबल. ये तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसमें जो वर्थ मेमोराइजिंग है. और वो क्या किस किस चीज़ के लिए ऑथराइज करेंगी? टू एंटर विद द असिस्टेंस with such assistance as may be required such place, to search the same in the manner as been specified in the warrant, to take possession of any property or article herein found which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article which this section applies, to convey such property or article before the magistrate and to guard the same on spot until the offender is taken before the magistrate, or otherwise to dispose it of in some place of safety, to take in custody and carry before the magistrate every such person found in such place who appears to have been privy to deposit, sale or production of such property or article knowing to have reasonable cause to suspect it to be stolen property, or as the case may be objectionable article to which this section applies. तो बेसिकली ये बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर को आप ऑथराइज करोगे, हु विल बी अबाउट द रैंक ऑफ द कांस्टेबल, वो एंटर भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, टेक पोजेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जो हैं वो भी कर सकते हैं. दे विल कन्वे द प्रॉपर्टी टू द मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट को प्रॉपर्टी कन्वे कर देंगे. वो टेक इन कस्टडी करेंगे ये जो प्रॉपर्टी होगी और या उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाने के लिए. ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है. द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर कौन कौन सी? काउंटरफीट कॉइन, पीसेस ऑफ मेटल इन कॉन्ट्रवेंशन टू मेटल टोकन्स एक्ट,
or brought in India in contravention of any notification for time being in force under Section 11 of the Customs Act. Counterfeit currency notes हैं, counterfeit stamps हैं, forged documents, false seals, obscene objects, refer to in 292 of the IPC, instruments or materials used for the production of any articles mentioned in clause A to F. Objectionable articles कौन कौन से हैं वो subsection 2 में दिए गए हैं. Then section 95, power to declare certain publications forfeited and to issue the search warrants for the same. Where any newspaper या कोई book है, any document, या तो वो printed होगी या wherever printed, state government को ये लगता है कि कोई ऐसा matter वो पब्लिश कर रहा है जो पनिशेबल है अंडर 124 जो कि सेडिशन से डील करता है, 153, 153A B, 292, 293, 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड. स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी. क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट? नोटिफिकेशन, और स्टेट करेगी ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन कि इनको क्यों लगता है कि एवरी कॉपी ऑफ द सच इशू या न्यूज़पेपर या कोई पब्लिकेशन है ये फोरफीट होने की ज़रूरत है. किसको? गवर्नमेंट को फोरफीट करने की ज़रूरत है. एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम. और उसके बाद जो कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो ये सीज कर सकता है. क्या सीज कर सकता है? ये कोई भी बुक या पब्लिकेशन wherever found in India, and any magistrate may by warrant authorize any police officer not below the rank of the sub-inspector to enter upon and search the place. Search the same in any premises where the copy of such issue or such book or other documents may be or may be reasonably suspected to be. जब स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इशू करेगी कि ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन है या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है ये फोरफीट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, तो उसके बाद जो कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको ये अथॉरिटी होगी कि वो उस जगह को एंटर कर सके और वो ये सारी चीज़ें जो है वो सीज कर सके जहाँ पे उसको सस्पेक्टेड है, जहाँ पे कि ये जगह जो है it is either used for storing or publishing the particular forfeited document or a particular publication. और ये जितने भी publications होंगे specifically punishable होंगे under one publications जो punishable है जो दिए गए हैं हमारे पास यहाँ इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस दिए गए हैं. ये जो भी पब्लिकेशंस या कोई भी बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट जो पनिशेबल है अंडर आईपीसी, ये स्पेसिफिकली उन्हीं पब्लिकेशंस के बारे में बात कर रहा है ये सेक्शन. In this section and in section 96, newspaper, book have the same meaning as the Press and Registration of the Books Act 1867. Document includes any painting, drawing or photograph or other visible representation. इस डॉक्यूमेंट से मुझे ये याद आया कि डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन है आई थिंक हमारे आईपीसी में दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको कई बार किसी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट ऑल्सो इन मेंस एग्जाम दे आस्क यू दैट क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट क्या है एंड एग्जाम्पल देंगे और बोलेंगे बताओ जी इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, बताएंगे कि बताइए इन 4 में से डॉक्यूमेंट कौन सा और कौन सा नहीं है. No order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise and in accordance with the provisions of the section 96. Now we'll study about 96 कि हम इस कोई भी ऑर्डर जो 95 में इशू हुआ है उसको हम 96 में ऑर्डर चैलेंज कैसे कर सकते हैं. 96 deals with the application to High Court to set aside declaration of forfeiture. कोई भी पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट था उस न्यूज़पेपर में या बुक में या उस डॉक्यूमेंट में जो सीज हुआ था या जो फोरफीट किया गया अंडर सेक्शन 95 वो विद इन 2 months. तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ क्या है, इसको मैं डिफरेंट पेन से लिखती हूँ ताकि मे बी अ डिफरेंट कलर सो दैट दिस इज इम्पोर्टेंट. कौन से? विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन in the official gazette of such declaration apply to the high court. तो किसको वो अप्लाई कर सकता है? हाई कोर्ट को. वो कोर्ट ऑफ सेशंस के पास नहीं, डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाएगा और ये प्रे करेगा कि भाई ये जो आपने डिक्लेरेशन इशू की है और जिसने ये बोला है कि मेरे जो ये पब्लिकेशन वगैरह वगैरह हैं दे नीड टू बी फॉरफीटेड, तो प्लीज़ सेट असाइड डिक्लेरेशन
on the ground that the issue of the newspaper or the book or the document in respect of which declaration was made, किस ग्राउंड पे कि भाई इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो ऑब्जेक्शनेबल था अंडर सेक्शन 95। ये बोला गया हमारे सेक्शन 96 के सब सेक्शन 1 में। एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3, और जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं, consists of 3 or more judges, be heard and determined by a special bench of the High Court composed of 3 judges। तो जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं, तो उस सिचुएशन में 3 जज का बेंच तो डेफिनेटली बैठेगा in order to hear such a matter or such an application। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जजेस, तो एक स्पेशल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, शैल बी कंपोज ऑफ ऑल द जजेस इन द हाई कोर्ट। तो जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सारे इस एप्लीकेशन की सुनवाई में बैठेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज वर्दी ऑफ forfeiture or not। On hearing of such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature and the tendency of the words, signs or visible representations contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made। Basically जो ये newspaper है, document है या publication है, ये they can be, इनकी copy submit की जा सकती है in evidence to prove a point basically कि हाँ ये इस वजह से objectionable है। The High Court shall, if it's not satisfied with the issue of the newspaper or the book or the document in respect of which the application has been made, contained any such matter as it's referred to in subsection 1 of the 95, set aside the declaration। जहाँ पे state high court dissatisfied है by the reasoning applied by the state government की जिसने issue किया था ये forfeiture, वो set aside करेगी इस forfeiture को। Where there is a difference of opinion among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority। जहाँ पे difference of opinion है तो जो majority decide करेगी वही decision होगा of the bench। Then section 97, search of persons wrongfully confined। If any magistrate, subdivisional magistrate or the JMFC magistrate of first class has reason to believe that any person is confined under circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall immediately be taken before the magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seem proper। Basically सेक्शन 97 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये डील करता है किस चीज़ से, इस सेक्शन को हम मिनी हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन, मिनी हेबियस कॉर्पस। इस सेक्शन में बेसिकली ये बोला गया है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये 3 अथॉरिटीज़ 1, 2 एंड 3, दे आर ऑफ द ओपिनियन, उनका रीज़न टू बिलीव है कि कोई पर्सन जो है वो रॉन्गफुली कन्फाइंड है कहीं पे, तो वो किसी अथॉरिटी, वो पुलिस अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकते हैं कि भाई तुम ना इस जगह पे जाओ, हमें लगता है कि एक्स पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड है। और जब इस पर्सन को आप ये पुलिस रिकवर करेगी इस पर्टिकुलर जगह से, तो वो इमीडिएटली इसको किसके पास लेके जाएगी, द पर्सन विल बी टेकन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जो वो ऑर्डर इशू करेंगे दैट मैजिस्ट्रेट डीम्स फिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, समथिंग दैट आई रिमेंबर, और मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ 97 कहाँ पे, हाउ एग्जैक्टली कैन इट बी डन। तो मुझे याद है कि एक बार हमारा एक मैरिटल केस था, बेसिकली नॉट अ मैरिटल केस, अडल्ट्स दो थे, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। A and B wanted to get married, and let's assume A girl है and B boy है, because B AG anyways। तो A girl है and B boy है, and they had gotten married, उन्हें भाग के शादी की थी। जो A की फैमिली है वो काफ़ी अनॉयड थी कि B से शादी क्यों कर ली। अब जब A की फैमिली को पता चला
कि एक ने शादी कर ली है, वो ऐसे बहुत सारे लोग लेके आ गए और उन्होंने ए को वापस अपने घर ले लिया, ठीक है। जब उसको घर लिया, उसके घर पे बहुत टॉर्चर किया, ए को बहुत टॉर्चर किया, उसको फेक बैंडेजेस लगाए, उसकी बहुत मार पिटाई की, एंड दे डिड नॉट लेट ए मीट बी। तो जो बी है उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन की अंडर सेक्शन 95 कि भाई हमारी क्लाइंट की जो बीवी है वो अनलॉफुली एंड विद अगेंस्ट हर विल वो है अंडर द कस्टडी ऑफ एज पेरेंट्स। तो जो पुलिस है वो ए के घर चली गई एंड वो वहाँ से ए को लेके आ गए और ए खुशी खुशी वापस बी के साथ चली गई, बिकॉज जज साहब ने ऑर्डर किया कि सिंस ए इज़ एन अडल्ट, बी इज़ एन अडल्ट एंड दे हैव गॉटन मैरिड आउट ऑफ देयर ओन विल, ये इनका अपना राइट है। तो she was taken out of the custody of her parents and she was given to her husband, rather she willingly chose to stay with her husband. So this is one of the examples of section 97 where how we find the application of such sections in on daily basis. Part to compel restoration of abducted females, section 97. Upon complaint made on oath, complaint honi chahiye kya, made on oath, of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child under the age of 18 years for any अनलॉफुल पर्पस, कौन सी अथॉरिटी है, डीएम, एसटीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और द जेएमएफसी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमन टू हर लिबर्टी or of such female child to have to her husband, parent, guardian or any other person having the lawful charge of such child and may compel compliance with such orders using the force as may be necessary. बेसिकली ये वाला सेक्शन जो है स्पेसिफिकली डील करता है किससे, अबडक्टेड फीमेल्स एंड जनरली अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसमें अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कोई भी ऐसा ऑर्डर कर सकता है जो बोलेगा इमीडिएटली रिस्टोर करो कोई वुमन जो है टू हर लिबर्टी, कहाँ, जहाँ पे फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड और ऑफ एनी सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड या पेरेंट या गार्डियन या एनी अदर पर्सन जो लॉफुल कस्टडी रखता है इस पर्टिकुलर पर्सन की। देन सेक्शन 99 जो है वो फॉल करता है अंडर द पार्ट सी, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस के रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 99, direction etc. of search warrants. The provisions of the section 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 shall insofar as the case may be applied to search warrants issued under section 93, 94, 95 and 97. बिल्कुल कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन में। Then we have section 100, persons in charge of closed spaces to allow search whenever any place liable to search। अगर आप सर्च वारंट इशू हुआ मेरी फॉर एग्जांपल मेरे रेजिडेंशियल एरिया पे and for example my residential area is liable to search or inspection under this chapter, any person residing in or being in charge of such a place shall on demand of the officer or other person executing the warrant or on production of the warrant allow him free ingress thereto and afford reasonable facilities for search therein। बेसिकली अगर मेरे रेजिडेंशियल एरिया में इशू हुआ है सर्च वारंट तो मुझे आई एम अंडर द ड्यूटी एंड इट इज़ ऑब्लिगेटरी कि मैं फ्री इनग्रेस, मतलब उनको जो पुलिस ऑफिसर्स आए हैं या कोई भी अथॉरिटी जो वो हैज़ बिन गिवन अथॉरिटी टू कमिट सच सर्च, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंडेटरी है कि मैं उनको फ्री इनग्रेस दूँ, अच्छे से अंदर आने दूँ उनको, आई डू नॉट एक्सरसाइज एनी रेस्ट्रेंट, और जितनी भी रीजनेबल फैसिलिटीज़ हैं उनको टू फॉर देम टू हैव अ बेटर सर्च वारंट। इफ़ इनग्रेस इनटू सच place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 47। अगर अब फ्री इंग्रेस नहीं हो सकता, जो हमारे पास पावर्स दिए गए अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेक्शन 47 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब सेक्शन 2 उसका एक्सरसाइज किया जा सकता है फॉर एंटरिंग इनटू सच अ प्लेस वेयर एनी पर्सन in or about such place is reasonably suspected of or concealing about his person
any article for which search should be made, such person may be searched, and if the person who is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. अब बेसिकली पर्सनल सर्चेस के बारे में भी बात की गई है, जहाँ पे कोई भी पर्सनल सर्च किसी वुमन का कंडक्ट करना है, तो सच particular search, personal search, has to be conducted कैसे, by strict regard to decency and only by another female. एक मेल पर्सनल सर्च नहीं कर सकता है एक वुमन का. जो सब सेक्शन 2 है, जैसे मैंने आपको अभी पहले बोला कि जहाँ पे आप फ्री इंग्रेस इजीली नहीं आने दे रहे हो, या एक्सरसाइजिंग रेस्ट्रेंट, तो जो पास अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 है, वो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ प्लेस. सेक्शन 47 जो है वो डील करता है, आई होप यू रिमेंबर, इट डील्स विद कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो फोर्सफुली अंदर आ सकते हैं. दे कैन इवन ब्रेक the window or the door in order to facilitate the entry inside particular premises, or even while trying to go out. This is what section 47 subsection 2 talks about. Then subsection 4, before making such search under this chapter, the officer or the other person about to make it shall call upon 2 or more independent and respectable inhabitants. तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस का सर्च का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. शैल, ये मैंडेटरी है, ऑफ द लोकेलिटी इन विच द प्लेस इज टू बी सर्च इज सिचुएटेड, और searched is situate, or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to such search, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to put to them or any of them to do so. बेसिकली ये बोला गया है कि जहाँ पे आप सर्च कंडक्ट कर रहे हो, 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ जो पर्टिकुलर एरिया है, आप उनके सामने ये सर्च कंडक्ट करोगे. द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस में ही ये सर्च कंडक्ट किया जाएगा, या जितनी भी लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं या लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन सीज्ड इस सर्च के ड्यूरिंग, या किसी ऐसी जगह से जहाँ पे सर्च होनी थी, वो उसकी पूरी लिस्ट की जाएगी, और ये जो लिस्ट है ये साइन की जाएगी बाय सच विटनेसेस. But no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness to the search unless specially summoned by it. और ये जो persons हैं, इनका signature लिया जाएगा इस personal search memo पे या search memo पे, and ये generally नहीं होते हैं witnesses, ये generally नहीं होते हैं, are not generally summoned by the court, लेकिन जहाँ पे court को लगेगा कि इनको summon करना mandatory है, then in such a situation they can be called by the court. The occupant of the place searched or some other person in this behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant of the person. जो ये particular person होगा, अगर अब इसे XYZ सीज हुआ है, तो इस लिस्ट जो प्रिपेयर हुई थी जिस पे इंडिपेंडेंट विटनेसेस का सिग्नेचर भी होता है, वो लिस्ट की कॉपी इस पर्सन को भी दी जाएगी. ये दिया गया हमारे सबसेक्शन 7 में. Then subsection 8, any person who without reasonable cause refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall deemed to have committed an offence under 187 of the Indian Penal Code. Basically जो person बोलेगा मुझे तो नहीं बनना witness, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है witness बनने में, वो person जो है डीम किया जाएगा कि इस पर्सन ने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 187, एंड 187 की जो हेड है आईपीसी में वो है विद रिगार्ड टू ओमिशन टू असिस्ट द पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव हिज असिस्टेंस. बेसिकली अगर आपको पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है या आई नीड योर असिस्टेंस एंड यू डिनाई दैट, देन दैट इन इटसेल्फ इज पनिशेबल ऑफेंस. आज के लेक्चर में हमने फिर से 10 सेक्शंस कवर किए.
कल होपफुली वी विल कंप्लीट 5 more sections, that is 101 to 105. उसके बाद आई थिंक 105A to E, I'm not sure, but there are few sections of 105 जो दिए गए हमारे CRPC में, but they are not very important, so we'll not be going through them, but 101 to 105 will be completing tomorrow hopefully. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आई हैव मेड CRPC इवन अ लिटिल ईजी फॉर यू, प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दोज ऑफ यू हु हैव कम टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. Hopefully see you tomorrow again. Bye bye.